that is we have done state function. Now what is state function? Any property whose value depends on the initial state and the final state are called as a state function. Any property whose value depends upon the initial state and the final state are called as a state function. And like which are the state function? The state functions are like pressure, volume, temperature, number of mole. They all are called as a state function. Then we have done the state function, means what? The property which depends upon the state of the system and independent of the path followed to reach it are called as a state function. Then we have also done a path function. What is path function? The property which depends upon the path are called as a path function. And in our entire syllabus, we are having two: work and heat. Work and heat are the only two path functions. अरे अत्तर सर माइक चालू है कौन सा? हाँ बोला. हाँ हाँ बोल रहे. सर माइक चालू आहे कोणता तरी दुसऱ्याचा. हा बघा रे, कोणाचा तरी माईक चालू आहे, जरा बंद करा. घरातला आवाज येतो, तुमच्या टीव्हीचा वगैरे आवाज येतोय. प्लीज केलात बंद. Okay. Now we are doing the path function. What is path function? The property which depends upon the path are called as a path function, and we are having only two path function: work and heat. Okay, in our syllabus. Otherwise, rest of all the properties are state function. State function means their value depends upon the initial state and the final state, or you can also say the value depends upon the current state. म्हणजे त्यांची प्रेझेंट स्टेट महत्वाची आहे. Substance त्या form मध्ये, how the substance have been brought into that form is not important. And what is path function? The property which depends upon the path are called as the path function. Then after that we are done with the next concept we are done, that is thermodynamic equilibrium. Now what is thermodynamic equilibrium? I have given you the example. When the gas enclosed in a cylinder and fitted with the piston, and as long as the piston is not moving neither up and nor down, that means we can say that the system is in equilibrium. And when the piston is moving either up or down, then we can say system is in non-equilibrium. But again, when the piston remain constant, that means we can say system is in equilibrium. So what is the meaning of thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium means a system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with the time, means the value of the state function do not change with the time, then it is called as a thermodynamic equilibrium. Now after thermodynamic equilibrium, now today we are starting with the new heading called as a process. Now what is the process? Transition from one equilibrium state to another equilibrium state is called as a process. Transition from one equilibrium state to another is called as a process. Now I'll just explain with the help of mechanics. First I'll explain this point and then I'll explain the process and then I'll go for the next. So I'll just share, I'll write on the paper and then explain it to you all. Okay, I'll just explain here. I'll first explain the meaning of हेलो हेलो सर व्हिडिओ पॉज आहे तुमचे. सर व्हिडिओ पॉज झाला तुमचा. विष्णू सर आहे की नाही?
त्यांचा पण व्हिडिओ पॉज झाला. पॉज झालाय. ना आले आले हा आले एक सर मिनिट आले. आहे एक मिनिट हा. Thermodynamic equilibrium. Now what is thermodynamic equilibrium? See here, gas is enclosed in a cylinder and cylinder is fitted with a piston. As long as the piston is constant, means piston is not moving down nor moving up, that means here the pressure, temperature, volume and number of mole. Number of mole means amount. All these properties will remain constant. Means जब तक ये piston ऊपर या नीचे move नहीं हो रहा है, that means all these properties will remain the same. Suppose for example in another case here, like if the piston is gone in the upward direction, that means piston is moving in the up. Now when piston is moving up, that when piston is moving, then all these properties will keep on changing. But once again when the piston remains stable, again all these properties will remain constant, and that stage is called as thermodynamic equilibrium. So basically what is thermodynamic equilibrium? When the piston is not moving, then all these properties like pressure, temperature, volume and number of mole all will remain the same, all will remain constant. All these properties will remain constant. Means suppose for example we are having the pressure is equal to 1 atmosphere, we are having the volume of the gas is 1 liter, we are having temperature is equal to 300 Kelvin, and maybe the amount of the gas is equal to 1. So all these properties will remain constant when the piston is not moving. That means we can say our system is in thermodynamic equilibrium. But when the piston start moving upward or downward, all the properties will keep on changing. Then we say system is not in thermodynamic equilibrium. But once again when the piston remain constant, when the piston remains constant, then again we can say system, all the property will remain constant, and again we can say system is thermodynamic equilibrium. So this is called as a first equilibrium state, and this is called as a second equilibrium state. So going from one equilibrium state to another equilibrium state is called as a process. Going from one equilibrium state to another equilibrium state is called as a process. So we got the process. Now in process we will be learning the first point. The first process we have to learn here, and the first process which we are going to study here is isothermal process. The first process we are going to study here is isothermal process. Now here we have to learn the meaning of different term. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या टर्मची मीनिंग लर्न करायचे आहेत. मीनिंग. So first we'll say what is the meaning of isothermal. Now here to explain this concept I will give you the example. 1 minute, I'll just change the page. Just hold down. One minute. Yes. So here I'm explaining you all isothermal process, and to explain this process I'm taking the example boiling of water. I'm taking the example boiling of water. Now we all know that boiling of the water. Now water boiled at what temperature? The water boil at 100 degrees Celsius, and if I want to convert into Kelvin, then to 100 degree I will add 273, and that is equal to 373 Kelvin. So see, I just to explain this concept, I am giving you all the example of boiling of the water. Water boil at 100 degrees Celsius, and 100 plus 273 is equal to 373 Kelvin. Now here, see, I'll take one example. Suppose we have taken some water in the beaker. We have taken some water in the beaker and we have kept for the heating. Now you know what happened? Initially we have taken normal water in the beaker,
and normal water has a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग एज्यूम करें यहाँ पे जो प्लेन वाटर लिया हुआ है, प्लेन वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और जब हम लोग यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएट टेम्परेचर विल इंक्रीज टू 30 डिग्री, टेम्परेचर विल रीच टू 40 डिग्री, temperature will reach to 50 degree, and finally water will start boiling at what temperature? 100 degree, because our experiment is boiling of water. So somebody if ask us the question कि अगर हमें कोई पूछ रहा है कि water कभी boil होगा, तो we'll say here water started boiling at what temperature? 100 degree Celsius। मतलब पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री था, और जैसे हम लोग यहाँ पे हीटिंग कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, और पानी का टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ रहा है? 100 तक। और जब पानी का टेम्परेचर 100 हो जाएगा, देन वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। और एक बार वाटर अभी बॉइल होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू हीटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने 15 मिनट के बाद वापस अगर मैंने टेम्परेचर बोला कि अभी टेम्परेचर कितना मुझे रिकॉर्ड करने दो, तो 15 मिनट के बाद भी मुझे टेम्परेचर कितना मिल रहा है? 100 डिग्री मिल रहा है। मतलब सी व्हेन टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। बॉइल होने के बाद मुझे क्या मालूम लगा, स्टार्टिंग से जब मैं यहाँ पे हीटिंग कर रहा हूँ तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है, बट एट 100 डिग्री वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू हीटिंग किया मींस आई कंटिन्यूड हीटिंग, एंड बाद में 15 मिनट के बाद भी टेम्परेचर 100 डिग्री मिला। मतलब आई कैन से हियर द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस T1। 15 मिनट के बाद वापस मैंने टेम्परेचर मेजर किया, तो उसके बाद भी टेम्परेचर कितना आ रहा था? 100 डिग्री ही आ रहा था। सो डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब हो रहा है डिफरेंस, डेल्टा मीन्स difference between the temperature, and delta matlab difference, and we always take difference between the final temperature minus initial, because T1 is initial temperature and T2 is final temperature. So delta T is equal to T2 minus T1. So T2 is 100 degree Celsius, T1 is also 100 degree Celsius, and that is equal to 0. So here I got delta T equal to 0। मतलब सी हमारा जो एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर है, हमारा एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ वाटर नहीं। हाँ, अगर मैंने हीटिंग ऑफ वाटर बोला तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन okay, it started। Okay, so here see now ISO, always remember here ISO का मतलब होता है कांस्टेंट, एंड थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर। सो ISO मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जिस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, that process are called as a isothermal process। So basically what is isothermal process? The process in which temperature remains constant। सो इसके बाद अगर आगे चल के अगर हमें कोई बोल रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम लोग कुछ भी करें, मतलब लेकिन डिपेंड, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हीटिंग ऑफ वाटर नहीं था, हमारा एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर था। तो एज लॉन्ग एज वाटर इज बॉइलिंग, मतलब जब तक वाटर बॉइल हो रहा है तब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, 100 से ऊपर भी नहीं जाएगा, 100 से नीचे भी नहीं आएगा जब तक वाटर बॉइल हो रहा है। सो बेसिकली हियर what is isothermal process? The process in which temperature remain constant are called as a isothermal process।
मतलब यहाँ पे अगर मुझे और एक एग्जांपल देना है तो मैं और भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिया बॉइलिंग ऑफ वाटर. सिमिलरली आई कैन राइट डाउन द एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. melting of ice. Now melting of ice occur at what temperature? थोड़ा blur आ रहा है. Melting of ice occur at what temperature? 0 डिग्री. मतलब अगर हम लोगों ने आइस लिया और आइस को अगर हमने मेल्ट करने के लिए रखा तो जब तक आइस मेल्ट रहा होगा तब तक आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा. पूरा आइस जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं और टेम्परेचर कम भी नहीं होगा. तो अगर हमें हमारा प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है और अगर मुझे आइसोथर्मल के लिए एग्जांपल देने हैं आई विल गिव द एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग ऑफ आइस. either you can say melting point of ice or we can say melting of ice. So basically here what is isothermal process? The process in which temperature remains constant are called as isothermal. बिकॉज ये वर्ड हम लोग बार बार आगे चल के यूज करेंगे. हम लोग डायरेक्टली भी प्रॉब्लम में वर्ड आएगा. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है लेकिन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. अभी देखो तुम फिर यहाँ पे देखो तुम बोलोगे स्टार्टिंग का से टेम्परेचर तो बढ़ रहा था. अभी एक बार वाटर बॉईल हुआ 100 पे लेकिन उसके बाद तो हम लोग हीट तो सप्लाई करें भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एक बार वाटर का टेम्परेचर 100 हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो हीट सप्लाई करेंगे that heat will be used for forming the heat will be used for the vaporization of water. Heat will be used for the vaporization of the water. मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो हीट सप्लाई किया that heat has used to increase the temperature. लेकिन एक बार वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया उसके बाद भी अगर हम लोगों ने और हीट सप्लाई किया that heat was not used for increasing temperature but after 100 degree Celsius the heat are used for vaporization of water. What is the meaning of vaporization of water? Vaporization of water means what? Converting the water from liquid state into water into its vapor state are called as vaporization. मतलब 100 तक जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो 100 तक टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ही जाएगा लेकिन 100 के आगे अगर हमने हीट सप्लाई कर दिया तो हीट will used by the water to convert its vapor and that process are called as vaporization. Okay, so hopefully you all have understood the meaning of isothermal process. What is isothermal process? The process in which temperature remains constant are called as isothermal. Okay, abhi based on this concept I'm just explaining one more term and the one more term I'm going to explain you here is also जो इससे ही related है and the term is called as internal energy. And internal energy is shown by the symbol U. Internal energy is shown by a symbol U. Now, what is basically first I'll explain कि internal energy का meaning क्या होता है. Internal energy मतलब क्या? तो for example देखो मैं यहाँ पे बीकर में water है. यहाँ पे जो water molecules है वो एक जगह स्थिर नहीं है. मतलब they are moving from one place to other place. यहाँ का water molecule यहाँ तक जा रहा है, इधर का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक जा रहा है. मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो बेसिकली व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ different kinds or types of energy. Different sum or types of energy means what? अगर मैंने बोला कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर के पास मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा. वाटर में H और O के बीच में बॉन्ड है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं मतलब उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी रहेगा. वाटर का मॉलिक्यूल अपने जगह पे वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगा. तो सम ऑफ ऑल आर कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी. मतलब वाटर जो यहाँ पे बीकर में लिया हुआ है वाटर के पास बहुत सारे एनर्जीज है एंड एडिशन ऑफ ऑल एनर्जीज टुगेदर are called as internal energy. जैसे फॉर और एक एग्जांपल हो कि एयर है, एयर is moving from one place to other place. Now when air is moving from one place to other place,
एयर ऑल्सो हैज गॉट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट, मतलब हवा के अंदर भी बहुत सारे एनर्जीज है, और सारे एनर्जीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जीज। तो वो इंटरनल, जैसे यहाँ पे देखो अभी, और ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरनल एनर्जी, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पानी का नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री था, तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो वाटर का जो इंटरनल एनर्जी एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा 1 जूल। ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पानी का नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, 1 जूल रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो इंटरनल एनर्जी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज आई सेड हियर इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, जब पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री था तो उसका इंटरनल एनर्जी था 1 जूल। पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री किया तो इंटरनल एनर्जी हुआ 2 जूल। बाद में इंटरनल एनर्जी हुआ 3 जूल, यहाँ पे हुआ 4 जूल, और यहाँ पे हुआ 5 जूल। मतलब जब वाटर बॉइल हुआ तो वाटर का इंटरनल एनर्जी, मतलब मैं इसे सिंबल लिख रहा हूँ U1, कितना था, 5 जूल था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब तक देखो, जब तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तक वाटर का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। जब वाटर बॉइल होना स्टार्ट हुआ तब वाटर का एनर्जी कितना था, वाटर का इंटरनल एनर्जी था 5 जूल था। तो अभी जब T1 के बाद T2, यहाँ पे T2 अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो मुझे U2 जो मिलेगा वो U2 भी कितना रहेगा, 5 जूल ही रहेगा। इसका मतलब, बिकॉज इसके आगे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी भी चेंज। देखो, जब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा था, 100 तक टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तब तक इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा था। लेकिन एट 100 इंटरनल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 5 जूल। और उसके आगे भी हम लोगों ने और हीट किया, लेकिन अभी और टेम्परेचर कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर 100 पे इंटरनल एनर्जी अगर 5 जूल है, तो 15 मिनट के बाद जब टेम्परेचर 100 ही है तो इंटरनल एनर्जी भी 5 जूल ही रहेगा। एंड देयरफॉर आई विल राइट हियर, देखो, दैट डेल्टा यू, मतलब हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी, मतलब जब वाटर बॉइल हुआ था, तो इंटरनल एनर्जी था 5 जूल था। 15 मिनट के बाद वापस देखा तो इंटरनल एनर्जी 5 जूल ही था, क्योंकि वाटर बॉइल हो रहा था, वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो डेल्टा यू का मतलब हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो हमारा फाइनल एनर्जी है 5 जूल, हमारा इनिशियल एनर्जी भी है 5 जूल। तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब इंटरनल एनर्जी इज 0। मतलब इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल रहा, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, एंड देयरफॉर इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। सो इफ they'll ask you what is the meaning of isothermal process, then you should know that what is isothermal process, the process in which temperature of the system remains constant, and since temperature remains constant, internal energy also remains constant. Okay, abhi only thing is what, when I say temperature remains constant, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल्टा टी इक्वल टू 0। और जब मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा यू इक्वल टू 0। गलती से अगर कोई बोला कि मैंने ऐसा लिखा टी इक्वल टू 0 लिखा, या गलती से अगर मैंने यू इक्वल टू 0 लिखा, तो विल आई गेट द मार्क्स इन द एग्जाम? नहीं। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर नहीं है, नहीं टेम्परेचर तो यहाँ पे है ना, टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर मुझे कोई बोलेगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो मैं बोलूंगा 100 डिग्री। हाँ, 100 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, तो
तुम लोग T इक्वल टू 0 लिखा मतलब टेम्परेचर 0 नहीं, टेम्परेचर 0 नहीं है, टेम्परेचर हैज वन पर्टिकुलर वैल्यू बट ओनली थिंग इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, अगर मैंने U इक्वल टू 0 लिखा तो नहीं, U 0 नहीं ना, इंटरनल एनर्जी है. जब वाटर बॉइल हुआ था तो वहां का इंटरनल एनर्जी कितना था, 5 जूल था, 0 नहीं है, खाली वो चेंज नहीं हो रहा है. इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि आइसोथर्मल के लिए मुझे लिखना है डेल्टा T इक्वल टू 0. ओके ओके 1 मिनिट. हाँ आता दिसतंय का बघा बरोबर. आइसोथर्मल के लिए लिखना है डेल्टा T इक्वल टू 0 एंड okay, and delta U is also equal to 0. Okay, is that clear? So I'll just go to that page of the textbook. हम लोग वहां से definition read करेंगे and then I'll come back for the new concept. But hopefully, have you all understood the meaning of the term isothermal process? Because ये term हम लोग chapter में बार बार बहुत जगह use करने वाले हैं. तो what is isothermal process? The process in which temperature remains constant, therefore delta T equal to 0 and internal energy also remains constant, so delta U is also equal to 0. Okay, so 1 minute, I'll just go to that particular page of the chapter. Yes, so please see here. Of course, they have given only definition, but तुम्हें concept मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने पूरा बोल दिया है. Please do not write. Recording में बाद में मैं check कर लूँगा. Yes, what is process? It's a process in which temperature of the system remains constant throughout the transformation. It's a process in which the temperature of the system remains constant throughout the transformation, are called as the isothermal process. And here, for a given temperature, जब तक हमारा temperature constant है, internal energy of the system also remain constant, and thus isothermal के लिए delta T equal to 0 and delta U is also equal to 0. So hopefully you all must have understood the meaning of isothermal process. Now I'll go for the next heading. Sorry, either you can call it as the isobaric process or you can also call it as the isobaric process. मतलब baric या बारिक दोनों में से जो word तुम्हें convenient लग रहा है वैसे pronounce कर सकते हो. So isobaric process. Now I'll explain that meaning. I'll explain both the meaning and then I'll come back for definition. So I'll just share again. I'll write on the paper and then explain to you all. 1 minute. I'll just turn the page. The next heading we are having over here as the isobaric process. Isobaric process. Now here isobaric process means what? See here again here iso. Now we should know that the meaning iso word stand for constant and bar matlab pressure, as we say pressure is measured in atmosphere. Pressure is also measured in a unit called as the bar. Like we know the unit of the pressure is atmosphere. Similarly, we also have the unit for a bar. Bar means the pressure. So here iso means constant and bar means pressure. So isobaric process means what? Constant pressure. Constant pressure. Now what is the meaning of constant pressure? देखो यहाँ पे. Like suppose for example, again I'll take the same example, but now here I'm going to give the example. I'm giving you all the example of heating of water. हीटिंग ऑफ वाटर. मैंने अर्लियर एग्जांपल में एग्जांपल दिया था बॉइलिंग ऑफ वाटर और यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हीटिंग ऑफ वाटर मतलब पानी को गर्म करना. तो अगेन आई हैव टेकन सम वाटर हियर एंड आई एम सप्लाइंग द हीट टू इट. जब मैं वाटर को हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लेकिन देखो बीकर ओपन है. बीकर अगर ओपन है
तो ओपन वेसल में मतलब यहाँ पे ओपन होने के कारण यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, द प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 atmosphere. That 1 atmosphere means it remain constant because we know that on the surface of the earth, we assume कि हमारे ऊपर या अर्थ के ऊपर प्रेशर कितना है, 1 atmosphere है. तो whenever we perform the experiment in open vessel, मतलब हम लोग जब ओपन वेसल में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओपन वेसल में हमारा इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 atmosphere. मैंने वाटर को 15 मिनट तक गर्म कर दिया. 15 मिनट के बाद अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर मेजर करूंगा तो 15 मिनट के बाद भी यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, 1 atmosphere ही रहेगा, क्योंकि वेसल ओपन है. एंड वी ऑल नो दैट pressure on the surface of the earth is always 1 atmosphere which is remain constant. तो P1 भी हमारा 1 atmosphere है, P2 भी हमारा 1 atmosphere है. तो आई विल से डेल्टा P, डेल्टा मतलब डिफरेंस, एंड डिफरेंस के लिए हमेशा लेना है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू. एंड वी नो दैट द फाइनल प्रेशर इज 0, sorry, P2 is 1, P1 is also 1, so delta P equal to 0. So basically here, what is isobaric process? The process in which pressure is constant are called as the isobaric process. An example here that delta P is equal to 0. Delta P is equal to 0. मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से दोगे? तो जब भी हम लोग लैब में काम करते हैं, देखो लैब में जब काम करते हैं हम लोग, तो ब्यूरेट में रहेगा NaOH, कोनिकल फ्लास्क में रहेगा HCl. तो ब्यूरेट से जब NaOH ऐड करते हो कोनिकल फ्लास्क में, तो कोनिकल फ्लास्क ओपन है, मतलब फ्लास्क के अंदर हमारा रिएक्शन चल रहा है, बट वी आर परफॉर्मिंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमारा फ्लास्क ओपन है. दूसरा और एक एग्जांपल लो, जब तुम प्रैक्टिकल में टेस्ट ट्यूब लिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब रहेगा, और टेस्ट ट्यूब में मतलब हम लोग सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं. सो आइदर वी टेक अ सॉल्ट और वी टेक अ OS, कुछ भी लिया रहेगा, एंड टू दैट वी ऐड सम रिएजेंट. मतलब टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया रहेगा, सॉल्ट या OS कुछ तो लिया रहेगा, और वो सेम टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएजेंट ऐड कर रहे हो, और रिएजेंट ऐड करने के बाद अंदर जो रिएक्शन होगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब ओपन है. टेस्ट ट्यूब ओपन है मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever we perform experiment in open vessel, in open container, वहां पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा then that process can be called as isobaric process. और आइसोबारिक के लिए क्या लिखना है, डेल्टा P इक्वल टू 0. अगर कोई बोलेगा मैं गलती से ऐसा लिखूं क्या, P इक्वल टू 0 लिखूं, P इक्वल टू 0 का अगर लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां पे प्रेशर नहीं है. नहीं, यहाँ पे प्रेशर है. हम लोग जो पानी को गर्म करे तो यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो इसीलिए तुम्हें डेल्टा P लिखना पड़ेगा. सपोज समटाइम व्हाट हैपन इन द एग्जाम, जल्दी में P इक्वल टू 0 लिखते हो, तो P इक्वल टू 0 मतलब तुम्हें कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट. So hopefully you all must have understood the meaning of isobaric process. What is isobaric process? The process in which pressure remains constant, and pressure remains constant मतलब what example we can say, example दिया था heating of water, और वहां पे क्या रहेगा, delta P equal to 0 रहेगा. Now after isobaric I'll just go for the another term, and another term is called as the isochoric process. Another term is called, ये सारे टर्म तुम्हें लर्न करना है, बिकॉज हम लोग आगे आगे बार बार ये टर्म यूज करेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस है. नाउ विल गो फॉर आइसोकोरिक. नाउ हियर आइसोकोरिक, अगेन वी ऑल नो दैट आइसो मतलब कांस्टेंट एंड कोरिक मतलब वॉल्यूम. कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम. सो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज वेसल. देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो हीटिंग ऑफ वाटर था, बट हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल था. नाउ हियर वी से व्हाट, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज वेसल. तो आई जस्ट राइट हियर, सी डायग्राम में एक बनाता हूँ रफ स्केच. अगर यहाँ पे वेसल है,
लेकिन वेसल क्लोज है और यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है एंड मे बी द इनिशियल वॉल्यूम जो पानी का हमने लिया रहेगा 1 लीटर है. द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 1 लीटर. अभी अगर मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर दिया तो गर्म करने के बाद यहाँ पे वेपर्स तो फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे बट वेपर बाहर नहीं आ सकते. वेपर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज वेसल इज क्लोज. बिकॉज द वेसल इज क्लोज, इसलिए वेपर बाहर नहीं जा रहे. फिर अगर मैंने मतलब बर्नर बंद कर दिया और तो बर्नर बंद करने के बाद क्या होगा? वेपर्स वापस कंडेंस हो जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद अगर मैंने वॉल्यूम V2 मेजर कर दिया तो मुझे V2 भी कितना मिलेगा? 1 लीटर ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि वाटर को हीट करने के बाद वेपर्स फॉर्म हो गए बट vessel were closed and because the vessel was closed ये वेपर्स बाहर नहीं जा पाए, इसलिए जब बर्नर बंद करूंगा मैं तो वेपर्स वापस कंडेंस हो जाएंगे तो हमारा फाइनल वॉल्यूम भी कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा. मतलब इनिशियल वॉल्यूम भी 1 लीटर ही था, हमारा फाइनल वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है. तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन द वॉल्यूम एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट? V2 माइनस V1. तो हमारा यहाँ पे V2 भी 1 लीटर ही है, हमारा V1 भी 1 लीटर ही है, तो डेल्टा वी इक्वल टू 0. So what is isochloric process? The process in which volume remains constant. The process in which volume remains constant are called as a isochoric process. And in isochoric process, always remember that delta V is equal to 0. तुम लोग ऐसा खाली अगर अभी यहाँ पे अगर खाली V इक्वल टू 0 लगा तो होगा क्या? नहीं. V इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम नहीं है, नहीं वॉल्यूम है ना, पानी अंदर है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, खाली वो चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है 0. सो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, और एक टर्म में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आई गो टू द टेक्स्ट बुक पेज. 1 मिनट, जस्ट होल्ड डाउन. चलो पेज टर्न कर लेता हूँ. Next process we are having here as a adiabatic process. Adiabatic process. Okay, adiabatic. Now, what is the meaning of the adiabatic process? What is the meaning of adiabatic? Now, adiabatic means what? I can say here the reaction performed in an insulated vessel. Reaction performed in an insulated vessel. Insulated मतलब like thermos flask. Insulated का मतलब हम लोग लेंगे like थर्मास फ्लास्क. थर्मास फ्लास्क का मतलब अगर हम लोगों ने कंटेनर के अंदर कुछ गर्म चीज रखी तो गर्म ही रहेगी, मतलब बाहर कितना भी ठंडा होने दो लेकिन वो गर्म ठंडी नहीं हो पाएंगी. दैट इज थर्मास फ्लास्क. मतलब हम लोगों ने एग्जांपल दिया था आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? द सिस्टम व्हिच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग आर कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड प्रोसेस. देखो जितना भी टॉपिक हुआ है उसे रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो. व्हाट इज इंसुलेटेड वेसल? मतलब थर्मास फ्लास्क लाइक. देखो यहाँ पे अगर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा इंसुलेटेड वेसल है. मतलब इंसुलेटेड का मतलब अंदर का हीट बाहर नहीं आएगा, ये इंसुलेटेड वेसल है. तो अंदर जो भी हीट, यहाँ पे जो भी हीट फॉर्म हो रहा है वो अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा. सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. और एडियाबैटिक के हम लोग लिखते हैं कैपिटल Q इक्वल टू 0. एक्चुअली अगर कहीं रिफर कर दिया तो एक्चुअली पहले स्मॉल क्यू लिखा जाता था, स्मॉल क्यू, लेकिन पहली बार अपनी बुक में उन्होंने कैपिटल क्यू लिखा है. कैपिटल क्यू का मतलब होता है हीट. क्यू मतलब हीट. हीट जो है अंदर का हीट बाहर नहीं आएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वेसल कैसा लिया है हम लोगों ने? इंसुलेटेड, मतलब लाइक अ थर्मास फ्लास्क. तो अगर थर्मास फ्लास्क के अंदर अगर हम लोग गर्म चाय रखेंगे तो गर्म ही रहेगा, बाहर कितना भी ठंडी होने दो अंदर ठंडा ठंड नहीं हो पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस in which heat is not allowed to exchange
heat is not allowed to exchange between system एंड सराउंडिंग। मतलब ये हमारा अंदर रिएक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा सिस्टम है और बाहर का पार्ट हमारा सराउंडिंग है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट नहीं जाएगा और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट नहीं आएगा। तो द प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक के लिए खाली क्यू लिखना है, यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, ओनली क्यू। मतलब हीट अंदर नहीं आ रहा है, हीट बाहर नहीं आ रहा है, सो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच heat is not allowed to exchange between the system and the surrounding are called as a adiabatic process, are called as a adiabatic process। लेकिन यहाँ पे दो कंसेप्ट है एडियाबैटिक में कि अगर एडियाबैटिक में क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, अंदर अगर हीट रहेगा तो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर अगर हीट रहेगा तो अंदर। लेकिन इसका मतलब अंदर रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे फ्लास्क के अंदर रिएक्शन होगा, और फ्लास्क के अंदर जो रिएक्शन होगा, द रिएक्शन इनसाइड द फ्लास्क, दैट इज रिएक्शन इनसाइड द insulated vessel, reaction inside the insulated vessel may occur, मतलब अंदर ही अंदर रिएक्शन होगा। and this reaction can be of two type, that is exothermic or एंडोथर्मिक। मतलब इसका मतलब बाहर से हीट अंदर नहीं जा रहा है, अंदर से हीट बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर थर्मस फ्लास्क के अंदर इंसुलेटेड वेसल के अंदर रिएक्शन होगा, और अंदर जो रिएक्शन होंगे दो टाइप के रिएक्शन रहेंगे, एक्सोथर्मिक रहेंगे या एंडोथर्मिक रहेंगे। नाउ अगर यहाँ का रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, अगर यहाँ का रिएक्शन मतलब अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए और बी लिए, और अगर हम लोग ए और बी को अलाउड करेंगे, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अंदर ही अंदर बहुत हीट इवॉल्व होगा, और अगर अंदर बहुत हीट अगर इवॉल्व होगा, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व। अगर यहाँ पे हीट इवॉल्व होगा, सो इनसाइड द फ्लास्क देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर। मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन फ्लास्क के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। और अगर फ्लास्क के अंदर का रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक रहेगा तो अंदर हीट इवॉल्व होगा, और अगर अंदर हीट इवॉल्व होगा तो देयर मे बी राइज इन इनसाइड द फ्लास्क टेम्परेचर में राइज। सिमिलरली, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी will also increase, because we know that internal energy is a function of temperature। तो अंदर ही अंदर अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। नाउ अदर वे, नाउ विल गो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज एब्सॉर्ब। अभी हीट इज एब्सॉर्ब मींस व्हाट? देखो ये फ्लास्क है, इंसुलेटेड वेसल है। इंसुलेटेड का मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं आ रहा है, अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ए और बी को अगर रिएक्ट करना है, लेकिन रिएक्शन कौन से टाइप का आ रहा है? एंडोथर्मिक आ रहा है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो हीट कहां से एब्सॉर्ब करेगा? बाहर से, तो हीट अंदर नहीं आ रहा है। तो ए और बी क्या करेगा? ये फ्लास्क के अंदर जो हीट है, फ्लास्क के अंदर जो हीट है वही एब्सॉर्ब करेगा। और ए एंड बी ने अगर फ्लास्क के अंदर का हीट अगर एब्सॉर्ब कर लिया तो फ्लास्क में बहुत ठंडा हो जाएगा, फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हियर इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब, देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर इनसाइड द वेसल। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो अंदर ही अंदर इंटरनल एनर्जी ऑल्सो विल डिक्रीज। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर हम लोग रिएक्शन, ये देखो ये सारे एग्जांपल क्या मालूम है? देखो हम लोग अगर लैब में रहेंगे तो कभी कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसमें टेम्परेचर नहीं बट चेंज होता है, तो दैट एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज आइसोथर्मल। समटाइम यू परफॉर्म रिएक्शन इन द ओपन वेसल,
अगर हम लोग रिएक्शन ओपन वेसल में परफॉर्म करेंगे तो क्या रहेगा, ओपन वेसल मतलब आइसोबारिक। अगर हम लोग रिएक्शन क्लोज वेसल में परफॉर्म करेंगे तो क्या रहेगा, आइसोकारिक, आइसोकोरिक। और अगर हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे इंसुलेटेड वेसल में, मतलब थर्मस फ्लास्क जैसे apparatus में, तो प्रोसेस कैसा रहेगा, एडियाबैटिक रहेगा। तो adiabatic मतलब you have you understood adiabatic, the process in which heat is not allowed to exchange between the system and surrounding, मतलब अंदर का हीट बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का हीट अंदर नहीं आ रहा है, करेक्ट, लेकिन अंदर वेसल के अंदर ही अंदर रिएक्शन हो सकता है, और अंदर ही रिएक्शन इनसाइड द वेसल रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक, और इनसाइड द वेसल द रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक अगर हो रहा है, so inside the container heat will evolve and there will be rise in temperature and there will be also increase in internal energy। लेकिन अगर बाहर से हीट अगर अंदर जा सॉरी अगर अंदर ही अंदर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, तो इनसाइड द हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब यहाँ पे जो भी हीट रहेगा वो ए और बी एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड देयर विल डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये चार प्रोसेस हम लोगों ने किए। सबसे पहले हम लोगों ने किया था आइसोथर्मल, सेकेंड हम लोगों ने किया था सेकेंड प्रोसेस वी हैव डन, दैट इज सेकेंड प्रोसेस वी हैव डन isobaric, third one we have done as a isoporic, and fourth one we have done as a adiabatic process. So I'll just go back to the textbook page, we'll learn the definition from there. So wait, I'll just share the page with you all. Okay, please. Yes, so what is isothermal process? Yes, what is isothermal process? यहाँ पे हमने डेफिनेशन का मीनिंग देख ही लिया है। The process in which temperature of the system remain constant, and for a given temperature internal energy also remains constant, internal energy also remain constant. So delta T and delta U both are equal to 0. Then we go for isobaric process. What is isobaric process? In an isobaric process, the pressure in isobaric process, the pressure remains constant during the transformation, delta P equal to 0. Isocoric, a process during which the volume of the system remain constant, volume remains the constant, so volume remains a constant, so here I can say here delta V equal to 0. And last one, adiabatic process, a process in which no exchange of heat between the system and surrounding, and Q equal to 0. यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखना है, खाली क्या लिखोगे, Q लिखोगे। एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस द ओके, एंड देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है, दे हैव मेंशन द पॉइंट ओवर हियर। सी फॉर exothermic process the heat is released which rises the temperature of the system, and if the process is endothermic, temperature falls, this results either in increase or decreasing the internal energy। मतलब अगर हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक रहेगा तो फ्लास्क के अंदर बाहर का हीट नहीं जा रहा है, लेकिन फ्लास्क के अंदर ही अंदर रिएक्शन हो सकता है, और फ्लास्क के अंदर इनसाइड द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक एंड रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा तो हीट विल गेट इवॉल्व and there will be rise in temperature and there will be rise in internal energy। और अगर फ्लास्क के अंदर का रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रहेगा, then there will be decrease in temperature and there will be decrease in internal energy। okay, now I'll just as normally हम लोग जब 11th में थे हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे क्या क्या क्वेश्चंस है, तो वैसे मैं क्वेश्चंस भी देख लूंगा। लेकिन बिफोर आई गो फॉर द क्वेश्चन, does anyone has any difficulty in this 4 point?
यहाँ पे और एक प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और रिवर्सिबल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 4 पॉइंट के ऊपर अगर किसी को डाउट और डिफिकल्टी है तो अपना ऑडियो ऑन करके मुझे पूछ सकते हो, अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। नहीं, अगर किसी को डाउट है तो, अगर नहीं रहेगा तो इट्स वेल रियली गुड कि तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो पूछ दो, मतलब कि क्या है करके। कुछ भी डाउट रहेगा पूछो, बिकॉज ये सारे 4 टर्म्स है जो आगे जब हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसलिए तुम्हें मीनिंग मालूम होना चाहिए। देखो ये चैप्टर बहुत लंबा है, मतलब अपने केमिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है और डेली के कंसेप्ट डेली लर्न करो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मीनिंग है। व्हाट इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज आइसोबारिक, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज एडियाबैटिक, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे लास्ट में। एक मिनट, थोड़ा तो यहाँ पे देखते हैं कोई क्वेश्चंस है क्या इसके ऊपर। आज जितना टॉपिक किया है हम लोगों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज नॉट डन। ये जो ड्राइंग कोई भी ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा है, प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग, बाद में मैं कॉपी देख लूंगा। 1 मिनट। हमें यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है एक, व्हाट आर, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव का मतलब ध्यान में रखना आई, आई मतलब इंडिपेंडेंट, जो प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते या जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर हुआ है, मतलब तुम्हारे, मैंने जो तुम्हें नोट्स दिया हुआ है, नोट्स में भी मैंने दिया, मतलब दे के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और कोई क्वेश्चंस है क्या देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर इतना ही क्वेश्चन है, तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ जस्ट फॉर हाफ एन मिनट्स, कि अगर किसी को डाउट है तो बोल दो। सर हाँ बोल। तुम्ही जी पीडीएफ पाठवलं नाही या चॅप्टरची, हाँ हाँ, तर ते सगळं लिहून काढायचं का तुम्ही जितकं शिकवताना तितकंच लिहायचं? नाही नाही, लिहायची तसं कसं माहिती आहे, जर तू, माझा मेन पर्पज काय, तुम्ही लिहिण्यामध्ये वेळ घालवाल, बरोबर आहे, तर लिहायला हा. तो लिहिण्यामध्ये वेळ न घालता तुम्ही रीड करा, किंवा अच्छा. तुम्ही जे सगळं दिलेले टर्म्स आहेत ना ते पाठ करा तुम्ही। हा. हे तुम्हाला मी ते काल टाईप करून थोडं पाठवलंय, कारण तुम्हाला नोट्स वगैरे मिळेपर्यंत जरा उशीर लागेल, कसं मार्केटमध्ये नोट्स रेडी आहेत पण ते तुमच्यापर्यंत आपल्याला मिळू शकणार नाही, कारण दुकानं बंद आहेत, आणि त्यामुळे तुम्हाला वाचायला काहीतरी मटेरियल पाहिजे म्हणून ते मी ते दिलेलं आहे, मग तुम्ही लिहून काढायला तुमचा वेळ जाईल, मग तुम्ही ते पाठ करा, चालेल। आणि जेव्हा मी हो. डेरिव्हेशन करेन, आता पुढच्या लेक्चरला आपले डेरिव्हेशन स्टार्ट होतील, मग ते डेरिव्हेशन प्रॅक्टिस म्हणून त्या वहीमध्ये लिहून काढा। सध्या वहीमध्ये काही लिहायची गरज नाही, जेव्हा फॉर्म्युले डेरिव्हेशन आपण करू, फॉर्म्युले डेरिव्हेशन आणि न्यूमरिकल, तेव्हा वहीमध्ये लिहायचे। आता फक्त नेहमी पाठ करत जा, पाठांतर जरा स्ट्रॉंग करा, जेवढा जेवढा आपला कन्सेप्ट झालेला तेवढं पाठांतर करत जायचं। अजून कोणाला काही डाऊट आहे का?
बोला. मॉर्निंगची मुलं, इव्हिनिंगची मुलं, विघ्नेश वगैरे काय डाऊट आहे? येस. मेसेज तुमचा मेसेजवरनं कळतंय, पण असतील तर विचारू शकता. ठीक आहे. तो विल स्टॉप इट ओव्हर हिअर आणि आपण पुढे मग नंतर नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. ओके. थँक यू. मी मीटिंग एंड करतो.